praise the Lord to you in the name of Jesus. I hope that you and your family is doing good. मुझे आशा और भरोसा है कि आप और आपका परिवार ठीक है और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं और जय मसीह की कहती हूँ. I hope that you people are really excited and happy in Christ, for God gave you one more opportunity and one more new day to see and to meet once again and to praise and glorify His beautiful and mighty name. मुझे आशा और भरोसा है कि आप सब परमेश्वर में आनंदित, खुश और मगन हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया, एक और दिन दिया देखने के लिए, उसकी आराधना प्रार्थना मिलकर करने के लिए. हालेलुया. और उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसके सुंदर और शक्तिमान नाम को ऊंचा उठाने का मौका दिया. हालेलुया. Come, let us all do a small prayer and let us all start this program. आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करें और इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, शुरू करें. So before starting, I would like to thank my father, my elders and all my people, those who gave me this opportunity to be in front of you all and to speak to the word of God and to encourage all of you people. I really thank God for this. मैं परमेश्वर का, अपने पिताश्री का और अपने सभी बड़ेजनों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अवसर और मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने आऊँ और परमेश्वर का यह वचन और आप सभी को उत्साहित और परमेश्वर की बातों में और आगे बढ़ाऊँ जो मैंने आपसे सीखा है. That we all keep learning from each other and it is good that we speak the oracle of God. It is really a great thing. कितनी अच्छी बात है कि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की वाणी को एक दूसरे के साथ करते हैं. बहुत अच्छी बात है. It's really a great thing. We are privileged and happy people to have such kind of things in our life. Hallelujah. So come, let us all close our eyes and we will pray. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे. Our Heavenly Father, we come to your presence with your holy and mighty name. Father, we thank you for this beautiful hour, beautiful moment you had given us. Jesus, I pray for each and every person, those who's watching this program. Father, you bless them, you be with them, Master. I pray that you heal them, you make them prosper in every way. Father, you prevail your will in their life, Father. I pray that you be with them. Jesus, I pray that you bless this program. Father, I pray that whosoever people are joined, connected to this ministry, Father, I pray that you bless them, you be with them. And Jesus, I pray that whatever word, singing, worship we're going to do today in this program, you be with us. I pray let it be a blessing and healing to each and every person, those who are watching now or will watch later. Father, you be with them, you bless them abundantly. Father, you give them whatever they lack for it. In Jesus' name, I pray that you hear our prayers and answer them. Master, I especially pray for each and every person at this moment, those who ask the prayer request. Master, you heal them, you give them whatever they're asked for, whatever their desires are. Master, I pray that you be with them, take away their every sorrow, sickness, sadness from their lives, and Father, you bless them. And Jesus, you give your happiness in their life. Father, I praise your beautiful and mighty name and lift your glory. Father, I give praise and honor to you. We believe in the name of Jesus that you've answered our prayers. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय और दिन के लिए जो आपने हमें दिया. प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक सुंदर सा मौका एक और बार फिर से दिया आपके लोगों से मिलने का, बातचीत करने का, आपकी आराधना प्रार्थना करने का. हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभु जी, इस वक्त हम दुआ करते हैं हर उन व्यक्तियों के लिए जो भी परमेश्वर इस वीडियो को देख रहा है. परमेश्वर, उन सबको आप आशीषित करें. परमेश्वर, जो लोग भी देख रहे हैं उन सब के साथ आप बने रहें. उनकी हर एक दिक्कत परेशानियों को आप दूर कीजिए. परमेश्वर, आप अपने प्रेम, आपकी शांति, अपनी चंगाई इन सभी लोगों के साथ रखें. और परमेश्वर, दुआ करते हैं आपकी उपस्थिति परमेश्वर सभी लोगों के साथ बनी रहने पाए. और परमेश्वर, दुआ करते हैं इस वक्त प्रभु जी आपने आराधना मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर आप इसे आशीषित करें. प्रभु जी, जितने लोग भी परमेश्वर इसके साथ जुड़े हैं और परमेश्वर जुड़ रहे हैं उन सब के साथ आप बने रहें. परमेश्वर, अब चाहे ये न्यूजीलैंड से परमेश्वर भारत ही क्यों ना हो, परमेश्वर आप सबके साथ बने रहें. और परमेश्वर, मैं खासकर दुआ करती हूँ उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर प्रार्थना की निवेदन मांगी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रभु जी, हम दुआ करते हैं हर एक दिक्कत, परेशानी, दुख, संकट परमेश्वर उनके जीवन से परमेश्वर दूर होने पाए. प्रभु जी, आप अपने आशीष, अपने प्रेम को, प्रभु अपने शांति को उन सभी लोगों के साथ, उनके घर परिवार के घराने के साथ रखें. परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, कबूल की है, ये मानते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मानते हैं. आमीन. I hope that you people are watching and praising God. Thank you for your beautiful comments. God be with all of you. Hallelujah. Come, let us all sing song and praise and worship.
worship God. आइए हम सब गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो लोग भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी के साथ बना रहे। हालेलुया। Come let us all sing song and praise and worship God. आइए हम सब गीतों को गाएं, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें। हालेलुया। Come let us all sing song and praise and worship God. For He is worthy of praise, He is worthy of glory. And we are created to glorify His name, to thank Him, to praise Him all the time. Amen. Hallelujah. Come let us all sing song and praise Him. Hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। I will sing praise and worship to you, O Lord, O Jesus, my Lord, with thanksgiving. For your good works, for your deeds are numerous, they are countless, and thanks to you more and more, like numerous times. Amen. Hallelujah. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। You've given to me, O God, more than I deserve. With your mercy you've given to me. Hallelujah. वो जीवित परमेश्वर है, He's a living वे God. आपके साथ में है, He's with you. हमेशा आपसे प्रेम करता है। Always He loves you. आइए उसकी महिमा गाएं। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। Amen. Hallelujah. He is the living God and our trust is in Him. सेवा पूरी करके पाऊंगी नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। पूरी करके पाऊंगी नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सबके साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Amen. Hallelujah. You are a living and a true God, and my trust is in you. I will do your work, and then I'll get your reward, O God, it says. Amen. Hallelujah. Meaning, amen. Amen. Hallelujah. I really welcome once again all of you people to the presence of God. Thank you for giving your precious time in watching the program and joining with us to the Word of God at this moment. So I will really like to thank you for your beautiful comments. Hallelujah.
Come, let us all go to the Word of God at this moment. मैं फिर से एक और बार आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने अपना ये सुंदर सा अवसर और अपना समय देकर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करी और ये वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, धन्यवाद। और आइए हम सब इस वक्त परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। So, in the Holy Bible, let us all open the book of Proverbs, chapter 27, verse 1 and 2. We're gonna read today. We're gonna learn something God really wants to talk to us through this. Let us all read it. आइए हम सब पवित्र बाइबल के अंदर नीति वचन की पुस्तक 27 का 1 और 2 पढ़ेंगे। आइए हम सब देखें कि आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है इन वचनों के द्वारा। Come, let us all read it. Hallelujah. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Hallelujah. नीति वचन 27 का 1 में लिखा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। Hallelujah. A really great and deep word, deep sentence, deep proverb written by Solomon, King Solomon over here. Let us all once again go to this word. Hallelujah. It says that do not boast about tomorrow. In our daily life, we getting so busy, so interacted to the worldly things, so disturbed in the mind that we do not really understand what we're doing. We're going to our jobs, we're doing our responsibilities, we're doing our daily chores, getting our phones, getting onto social media, doing our some other works which are left behind, doing it, and then again we are eating, we giving thanks to God for 4 or 5 minutes. It's really good. Hallelujah. And then we having some nap or rest time, or maybe you're still working hard, giving your best, and then again we're going to sleep saying, God, please protect me, give me a new day. This is what we are doing every day. I hope this is what is going on every day, hallelujah. Well, have we ever, do we think at least that what's going to happen tomorrow? Or in our heart, do we have this question that are we going to still live tomorrow? Well, in the Holy Bible, there is a certain thing happened that when disciples asked Jesus Christ that, Jesus, where do you live? At least tell us the place that where do you live? At least tell us the address of your house. Jesus answered, I have no place, but where my Father lives, there is where I live. And again they asked him that, Jesus, we are following you. It is really a good thing, but will you tell us what will we get? Who is gonna give us food, or where are we gonna sleep, or where are we gonna rest? You know what Jesus answered? Look up to the ravens of the sky. Look up to the birds, like any kind of birds in the sky. And think about them. They do not sow nor they reap, but still their heavenly Father feeds them, gives them whatever they want. So God created you, and we are humans, more precious, more we can say special from these animals which God created. So we are more special for Him. So why do we boast about it? It is good thing that God is at our side. God is giving us whatever we want or whatever we're lacking in His mighty name. But is it good that we boast about something, about tomorrow? That tomorrow is this going to happen with us, or this is what's going to happen with us, I'm going to do this, I'm going to do that. We have no guarantee of the soul of this body, everything. We have no guarantee, for we are nothing by our own. God created us for some precious purpose, for some special reason, and we are in His hands. We have surrendered to Him. So God is the one, whatever He wants to do, so He will do it through us. So we are special. A good thing if we boast that we have something to do tomorrow and we have everything with us, so we need not to fear anything like that. So I hope you people are getting my point. Hallelujah. That's what I mean to say. Let us all stop boasting about tomorrow, that we have everything to do, and we have certain works to do list, and we gotta do all these works. Then remember, God is the one who's gonna prevail His things through us. So we are nothing to do the things by our own. If God wants,
then it happens. If it does not, then it doesn't happen. But everything what happens with us, it is for our good. For God, for it is written in the Holy Bible that whatever happens with you and me, it is for our good, and it is for our good, for we are His children. Hallelujah. Come, let us all read it in Hindi once again. कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। आज के इस डेली भागदौड़ में, इस इतनी बिजी लाइफ में हम इतने बिजी हैं। सुबह उठे, प्रभु धन्यवाद, आपने हमें एक अच्छा दिन दिया, अच्छी सांसें दी एक और बार। फिर हमने उसका धन्यवाद किया 4-5 मिनट, फिर हम अपने काम पे व्यस्त हो गए, और फिर शाम होते थक कर घर पर वापस आए, या जिस जहीं पर भी जगह पर हैं आप, फिर आए, फिर परमेश्वर धन्यवाद हो आपका, आपने दिन भर संभाला, बहुत बहुत शुक्रिया, दिस एंड दैट। उसके बाद हमने फिर प्रार्थना करी, फिर थक गए, सो गए, कह गए प्रभु हमें अच्छी नींद देना, सुबह उठकर आपकी आराधना प्रार्थना करें, और हम सो गए। क्या हम ये कभी सोच रहे हैं, आपने अपने हृदय में कभी ये प्रश्न किया है कि कल का दिन हमारा कैसा होगा? क्या हम कल के लिए जीवित रहेंगे? हालांकि ये बाइबल में लिखा है कि कल के विषय में तुम चिंता ना करना। हाँ, ये सब बातें हैं कि हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन बाइबल में यहाँ पर एक अलग ही बात लिखा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मारना। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हैं हम में से, और हम भी हैं, आप और मैं, हम सब हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने कभी ना कभी सोचा होगा, और कभी ना कभी हमने एक प्लान वगैरह बनाया होगा कि कल हम ये करेंगे, और कल हम वो करेंगे, कल हम ये वो कर हम सब कर लेंगे, और फिर इतने बिजी हो गए कि हम परमेश्वर को भूल गए। That we forgot God, हम भूल गए परमेश्वर को। इसी विषय पर लिखता है राजा सुलेमान कि कल के विषय में डींग मत मारना, यानी कि कल जो भी होना है वह परमेश्वर के हाथ में है। जो भी होना है वह परमेश्वर के हाथ में है। अच्छी बात है कि आपने एक प्लान लिस्ट बनाया है, आपने एक अच्छा एक सिस्टमैटिक वे में बनाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके विषय में ज़्यादा ही अपने अंदर घमंड लाना, या फिर ज़्यादा ही ये सोच लेना कि हम ये कल करेंगे, और हम ये सब कुछ सोच कर अपने दिमाग में सब भर लेना, लाइक एवरीथिंग, यानी कि इन सब बातों से अपने आप को भर लेना, ज़्यादा ही खुश हो जाना, लाइक हम ये कर देंगे, हम वो कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, डन, वी आर डूइंग एवरीथिंग, ऐसा सोच लेना। इस विषय के बारे में मना किया जाता है, विषय पर डींग ना मारना, क्योंकि हमें नहीं पता कि दिन भर में क्या होता है। हम ये नहीं जानते कि दिन भर में क्या होने वाला है, तो हम कैसे जानेंगे कि कल के दिन में क्या होगा? How will we know if we still do not know that what's going to happen in an entire day, even though we are like we did the list and everything, but still, how can we calculate what's going to happen tomorrow? For we have no surety, क्योंकि हमारे जो ये जीवन है, ये सांस की कोई surety नहीं है। We are no passport. I mean, no, we are no citizen of this world. So how are we sure about tomorrows? How do we boast about it? हम जबकि इस संसार के नागरिक हैं ही नहीं, तो हम कैसे ये सोच लें, और कैसे हम कल के विषय के बारे में डींग मार लें? कैसे कर लें हम ये सब कुछ, जब हमारा कुछ है ही नहीं? तो अच्छी बात है कि हम किसी भले काम के लिए, हम कल के लिए कोई प्लान वगैरह बनाते थे, लेकिन यहाँ साफ मना किया गया कि उसके विषय में डींग मत मारना, उसके विषय में ज़्यादा घमंड ना करना, क्योंकि हम नहीं जानते कि दिन भर में क्या होने वाला है, कब क्या हो जाए, हमें नहीं पता। हाँ, परमेश्वर की अनुग्रह हम सब पर है, इसलिए हम पल पल में जो जितने भी बड़े बड़े भयंकर चीज़ें होती हैं उन सबसे हम बच जाते हैं। इट इज़ गॉड्स ग्रेस that we being saved, we being protected from every little accidents, from every single accidents, like per second which is happening. God is protecting us like in every single minute. So it is His grace. It would be better if we not boast about it. So for we do not know what's going to happen. और बाइबल के अंदर एक ऐसी घटना है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से चेले आकर पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हमें अपना पता तो बता दो कि आप रहते कहाँ हैं, कहाँ है आपका घर, कहाँ सोते हैं आप, Where do you live, कहाँ रहते हैं आप? यीशु मसीह ने कहा कि I have no place, मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है, where my father lives there where I live, जहाँ मेरा पिता रहता है वहीं मैं रहता हूँ।
So and where I'm gonna live, there you gonna live. और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ पर आप रहोगे, ये उत्तर दिया। लेकिन चेलों ने फिर आकर एक और बार उनसे पूछा, यीशु मसीह से कहा, प्रभु यीशु मसीह, अच्छी बात है कि हम अपने घर बार, अपने बीवी बच्चों का, हम सब कुछ छोड़कर, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना सब कुछ छोड़कर हम आपके पीछे तो हो लिए। अब हमें ये बताओ कि हमें मिलेगा क्या? हम ये जो सेवा कर रहे हैं उसका मेवा क्या मिलेगा? जब उन्होंने पूछा कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ आराम फरमाएंगे, तो यीशु मसीह ने एक बात कहा, आकाश के उन पक्षियों को देखो क्योंकि वे नहीं जानते और ना तो कुछ बोते हैं और ना कुछ काटते हैं, लेकिन फिर भी स्वर्गीय पिता उनका पेट भर देता है और वो शाम तक तृप्त होकर अपने घर में रहते हैं। हालेलुया। और हम इंसान हैं और परमेश्वर ने और खुद ईश्वर ने हमें बनाया है, तो हम कितने ही महत्वपूर्ण हैं उसके लिए, हाउ स्पेशल वी आर, हम कितने खास हैं उसके लिए। देन व्हाई डू वी बॉस्ट अबाउट इट? तो फिर हम क्यों डींग मारते हैं कि बस समय आने दो, कल का समय आने दो, हम तुम बता देंगे क्या है, हम क्या बताएंगे। हम इस जिंदगाड़ी का कोई भरोसा नहीं है। नो guarantee we have about this life, about this vehicle which is still moving on these oxygens, nothing. Why do we boast about it? तो फिर हम क्यों डींग मारते हैं, क्यों घमंड करते हैं? हमें ये सोचना जरूरी है। तो आइए हम सब इस विषय को अपनी जिंदगी से निकालें और परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें। Come, let us all take this away like far away from our hearts, this boasting that we have this and that, we have a lot of to-do list and we gotta do this and that, and we forget God about it. Then remember, let us all keep these all things aside and praise and worship God and do His works. Let us all become meek, polite in our hearts, humble ourselves and pray to God. God, I have several plans to do, but whatever you want, let it happen in our lives. कि आइए हम सब दीन नम्र होकर परमेश्वर से दुआ करें कि प्रभु, मेरे पास इतना ज़्यादा काम है करने के लिए, कल के लिए, उसके बाद के लिए, सब कुछ है प्रभु करने के लिए। और हम ये दुआ करेंगे, प्रभु हम चाहते हैं कि ये सब होने के बावजूद भी जो आप चाहते हैं वह हमारे जीवन में पूरा हो, तब शायद हमारे काम सफल होंगे। Maybe then our work's gonna fulfill, then our work's gonna become successful. Hallelujah. We have to think about it. हमें इसके विषय में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो come let us all pray about it. आइए हम सब इसके लिए दुआ करेंगे, लेकिन दुआ में जाने से पहले come let us all read the second verse. Proverbs chapter 27 verse 2 if we read. Let another praise you. Hallelujah. Let another praise you and not to your own mouth, a stranger and not your own lips. Hallelujah. नीति वचन 27 का यदि 2 हम पढ़ते हैं, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु आप ना करना, दूसरे तुझे सराहें तो सराहें, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं। There are many incidents in our life which happen with us, जो हमारे साथ घटी हैं, जहाँ पर हम चुप रहते हैं और ईश्वर अपना काम कर देता है और उस काम के जरिए वह अपनी बात कह देता है, वह अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा देता है जो अपने आप को उस परमेश्वर से ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर है, वह परमात्मा है, इज एवरीथिंग, वो सब कुछ है, उसके हाथ में सब कुछ है। हम कौन होते हैं अपने आप की प्रशंसा करने वाले? Who are we to praise ourselves? We are nothing. I mean to say in our daily life, in our lives, somewhere there might be an incident happened where people around you, they were trying to show you down, they were trying to dominate you, but God, by doing His work through you, He spoke to those people. He nailed it through the work, which you did because of God, through God, which God made you to do it. And He spoke to those people. He showed them who you are, that you are chosen, you're greater than them. And God showed them. Because God is God.
there is nobody who's gonna show him down. Like in the Holy Bible, there is written, is there somebody who's gonna cheat God? Is there somebody who's gonna say that I'm greater than God? Or if somebody says, is he still alive? My question to you. क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को, ईश्वर को धोखा दे सकता है? जब धोखा ही नहीं दे, हम कुछ कर ही नहीं सकते. We are nothing to do that. We are nothing to do anything by our own. For we are His workmanship created for His word. So how can we do that? हम परमेश्वर के उस कार्य के लिए सृजे गए हैं, तो हम कैसे ये सब कर लें? How can we? Hallelujah. So, and if somebody is praising you, let him praise, but do not praise yourself by your own. Because a good person said that the praise of yourself is not really good on your own lips. I mean to say कि अपनी तारीफ अपने आप करना कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाइबल में भी ये बात साफ साफ लिखी है कि आपकी प्रशंसा कोई और करे तो करे, अच्छी बात होगी. क्योंकि यदि हम चुप रहते हैं तो परमेश्वर बोलता है. For when we are quiet, then God speaks. There are many testimonies in our life, you know. There are a lot of testimonies in our life. We like the situations where we've gone through, and God have used it in really a special and in a miraculous way. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत और एक बहुत ही चमत्कारी उस तरह से, उस तरीके से हमें इस्तेमाल किया. Hallelujah. God is really great. His works are incredible. They are beyond our imagination. And if we keep God's word in our mind, then we are successful about everything, everywhere, every time. और हम यदि परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में रखकर चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम सफल होंगे हमेशा, हर जगह और हर वक्त. क्योंकि परमेश्वर है और उसकी जो सोच है वो हमारे सोच से परे है. उसके काम अद्भुत हैं, भले काम है वो हम सब के लिए. हालेलुया. The works of God are good for all of us. Hallelujah. Come, let us all pray for this word, and let us all pray that God bless us, God keep this in our mind, and God help us in everything. आइए हम सब दुआ करें इस वचनों के लिए कि परमेश्वर आप हमारी सहायता मदद करें कि ये वचन हमारे साथ रहे, और जो हमने आज सीखा कि हम कल के विषय में कभी डीक ना मारे. और क्योंकि हमें ये नहीं पता कि दिन भर में क्या हो रहा है, और हम अपनी प्रशंसा अपने मुख के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु अपने भले कामों के जरिए परमेश्वर यह प्रशंसा आपको दी जाए और लोग परमेश्वर आपकी प्रशंसा करने पाए. Come, let us all pray for this at this moment. आइए हम सब इसके लिए दुआ करें. In midst of us there is Philip भैया, he will pray for us. हमारे बीच में फिलिप भैया जो है वह हम सब के लिए दुआ करेंगे, इस वचन के लिए दुआ करेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. है प्रेमी दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन यहोवा. प्रभु इस सुंदर पल में मेरे खुदावन यहोवा, इस सुंदर वचन के द्वारा प्रभु हमारे हृदय को छूने के लिए तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदावन यहोवा. परमेश्वर तू जानता है मेरे खुदावन यहोवा, आज की स्थिति में मेरे खुदावन यहोवा, आज के इस दौड़ के अंदर मेरे प्रभु लोग तुझे भूल चुके हैं मेरे प्रभु. परमेश्वर लोग तुझसे दूरी बनाते जा रहे हैं मेरे खुदावन यहोवा. प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु वो दरारें परमेश्वर दूर होने पाए मेरे खुदावन यहोवा. हाँ परमेश्वर, हमारे अंदर जो मैं की आत्मा है, जो ब्राउननेस की आत्मा है मेरे प्रभु, उसे तो दूर कर मेरे खुदावन यहोवा. हाँ परमेश्वर, हम नर्म दीन और परमेश्वर दयालु बनने पाए मेरे प्रभु, ताकि तेरी आशीष तेरी महिमा हमारे जीवन में होने पाए प्रभु. हम घमंड करके मेरे खुदावन यहोवा हम तेरी आशीष को ना ठुकराने पाए मेरे प्रभु, बल्कि परमेश्वर हम दीन बन के प्रभु तेरे पुत्र कहलाने पाए, तेरी पुत्रियाँ कहलाने पाए मेरे परमेश्वर. हाँ प्रभु, हमारे कर्तव्यों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए प्रभु, ना कि प्रभु हमारे चाल चलन के द्वारा लोग ये ना कहने पाए कि ये व्यक्ति कितना बुरा है, ये चर्च में तो जाता है पर इसका वातावरण कितना गंदा है, इसका व्यवहार कितना गलत है, ये ना कहने पाए प्रभु. परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी अनुग्रह हमारे ऊपर रख और अपने ज्ञान से हमें भरपूर कर परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक नेताओं के लिए,
हर एक मिनिस्टर्स के लिए, हर एक सिटीजन्स के लिए मेरे खुदावन यहोवा, जो इस समय मेरे प्रभु इस प्रोग्राम को देख रहे हो परमेश्वर, इस इंडिया के, इस पूरे विश्व के लोगों के लिए परमेश्वर अपनी अनुग्रह, अपनी आशीष, अपनी सामर्थ और परमेश्वर तेरी महिमा और परमेश्वर अपने ज्ञान से और परमेश्वर अपने वचन से उन सभी लोगों को तू भर मेरे प्रभु, और परमेश्वर ताकि वो इस देश को और परमेश्वर इस पूरे वर्ल्ड को और अच्छी रीति से चलाने पाए और लोग अपने कर्तव्यों को समझने पाए मेरे खुदावन यहोवा। तो सहायता कर मेरे प्रभु। एक छोटी सी प्रार्थना तेरे हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Amen. God bless all of you. Praise the Lord everyone. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, सभी को जय